ये है 2018 का पेपर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। फिजिक्स का है पहला क्वेश्चन और इसमें मल्टीपल करेक्ट है। द पार्टिकल ऑफ द mass m initially at the rest at the origin. It is subjected to a force and starts moving along the x-axis. Its kinetic energy k changes with the time as dk by dt is equal to gamma t, where gamma is a positive constant of the appropriate dimension. So which of the following of statement is true? तो dk by dt is equal to gamma t, hk is equal to half mv square. dk by dt is equal to mv dv by dt is equal to gamma t, यानी जीरो से भी डी वी इज इक्वल टू गामा जीरो से टी डी टी टी। एम बी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू गामा टी स्क्वायर बाई टू, यानी वी इज इक्वल टू रूट ओवर गामा बाई एम इंटू टी। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू रूट ओवर गामा बाई एम कॉन्स्टेंट। एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम रूट ओवर गामा बाई एम, यानी रूट ओवर गामा एम, तो ये होता है कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर रहता है ए, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट। फिर बी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और फिर डी, द फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ए बी और डी इसका है जो आंसर चला जाएगा। अगला सवाल है कि consider a thin square plate floating on a viscous liquid in a large tank. The height h of the liquid in the tank is much less than the width of the tank. The floating plate is pulled horizontally with a constant velocity mu naught. तो which of the following of statement is true? तो इसमें आ जाएगा कि ये दिया हुआ h u naught viscous force given by F is equal to minus eta a dv by dy. Since h is very small, therefore magnitude of the viscous force given by F is equal to eta a delta v by delta y. तो एफ इक्वल टू ईटा ए म्यू नॉट बाई एच, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ईटा और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन बाई एच और एफ जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एरिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, सी और डी। इधर रिफ्लेक्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। फिर सी, द टेंजेंशियल शियर ऑफ स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेज विथ यू नॉट, और फिर डी, द टेंजेंशियल शियर फोर्स ऑन द प्लेट वेरी लीनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड। तो ए, सी और डी इसका जो आंसर चला जाएगा। अगला सवाल है कि since plate is moving with the constant velocity, some force must be acting on the floor. An infinitely long, thin, non-conducting bar is parallel to the z-axis and carries uniform line charge density lambda. It pisses a thin, non-conducting spherical shell of the radius r in such a way that the arc PQ subtends an angle of the 120 degree at the center of the spherical shell as shown in the figure. The permittivity of the free space is E naught. तो which of the following of statement is correct? तो ये दिया हुआ है पी क्यू एक रॉड है, ओ है पी आर ओ और फिर क्यू ओ दिया हुआ है। तो पी आर ओ फिर क्यू जेड एक्सिस में filled to the straight bar is perpendicular to the bar and radially outward, hence E z is equal to 0. Length PQ is equal to 2 और sin 50 यानी कि रूट 3r according to the Gauss law. टोटल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी एफ यानी कि इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट इज इक्वल टू लैम्डा बाई रूट 3r बाई ई नॉट। तो इसका आंसर कितना जाएगा ए और बी, यानी कि the electric flux through the field is root over 3r by lambda a naught, or b, the z component of the electric field is 0 at all points on the surface of the field. Next question है कि a wire is bent in the shape of a right angle triangle and is placed in front of a concave mirror of the focal length f as shown in the figure. Which of the figure shown in the four quantitatively represents the shape of the image of the bent wire? This figure for not to scale. तो f by 2 f 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये f by 2 हो गया, f हो गया a से b 45 डिग्री, f distance of the point A is f by 2. Let a dash be the image of the f from the mirror. For this image, 1 by b plus 1 by 1 f minus f by 2 is equal to minus 1 by f. तो 1 by b is equal to 2 by f minus 1 by f is equal to 1 by f. Image of the line AB should be perpendicular to the principal axis and image of f will form at infinity. Therefore, the correct image diagram कुछ इस प्रकार से आएगा a dash b dash. और फिर यहाँ से दिखाया हुआ है कि एफ बाई एफ माइनस यू इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन। तो एच टू इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एफ माइनस एक्स बाई माइनस एफ प्लस एक्स, यानी एच टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी ये वाली। नेक्स्ट है कि इन रेडियो एक्टिव डिकेज चेन 232 थोरियम 90 डिकेज न्यूक्लियस डिकेज टू 212 82 पीवी न्यूक्लियस। लेट एन अल्फा एंड एन बीटा बी द नंबर ऑफ द अल्फा एंड द बीटा माइनस पार्टिकल रिस्पेक्टिवली emitted in this process. So which of the following of statement is true? So 23290 thorium is converted into 212 pb by change in the mass number A is equal to 20 आ गया। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 20 और 4 यानी कि 5 आ जाएगा। अब ड्यू टू 5 अल्फा पार्टिकल जेल बी चेंज बाय द 10 यूनिट, सिंस गिवन चार्ज चेंज इज 8, देयरफॉर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा कि एन अल्फा इज इक्वल टू 5 और एन बीटा इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है कि इन एन एक्सपेरिमेंट
To measure the speed of the sound by unting air column, a tuning fork of the frequency 500 Hz is used. The length of the air column is varied by changing the level of the battery in the resonance tube. Two successive resonances are heard at the air column of the length 50.1 cm and 83.9 cm. Which of the following statement is true? So then let N1 harmonic is corresponding to 50.1 cm, N2 harmonic is corresponding to 83.9 cm. Since both one consecutive harmonic, their difference हो जाएगा lambda by 2. तो lambda by 2 equal to 83.9 minus 50.1 cm. तो lambda by 2 equal to 33.2 cm. तो lambda equal to 56.4. तो lambda by 4 equal to 15.6. The speed of the sound determined from the experiment is 332 meter per second. और जाएगा फिर free. The wavelength of the sound wave is 66.4 cm. अगला सवाल अच्छा इसका आगे फिर है कि लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फंडामेंटल मूवमेंट ऑफ क्लोज टू लैम्डा बाई 4 एंड द 50.1 cm must be an odd multiple of this length 15.6 गुना 3 बराबर 49.8 cm. Therefore 50.1 is third harmonic. If the end correction is E, then the E plus 50.7 equals 3 lambda by 4. तो E is equal to 49.8 minus 50.7 is equal to minus 0.9 cm. तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा V is equal to F lambda. तो V is equal to 500 गुना 56.4 सेंटीमीटर बाई 7 यानी कि 332 मीटर पर सेकंड. तो इसका आंसर कितना जाएगा 332 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट है कि सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस is covered with a thin layer of the oil. A rectangular block of the mass m is equal to 0.4 kg is traced on the surface. An impulse of the 1 Newton is applied to the block at the time t is equal to 0. So that it starts moving along the x-axis with the velocity v of t is equal to v naught e minus t by tau, where v naught is the constant and tau is equal to 4 seconds. The displacement of the block in the meters at t is equal to tau is take in 1 by h equal to 0.37. So j is equal to 1, m is equal to 0.4, v is equal to v naught e के पावर माइनस टी बाई tau. तो v नॉट इक्वल टू जे बाई एम यानी 2.5 मीटर पर सेकंड. तो v इज इक्वल टू v नॉट ई माइनस टी बाई टाउ. तो डी एक्स पर डी टी इक्वल टू v नॉट ई माइनस टी बाई टाउ. 0 से x dx इक्वल टू v नॉट 0 से t टाउ ई के पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी यानी ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स माइनस 1. तो x इक्वल टू v नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस 1 बाई टाउ 0 से टाउ. तो x इक्वल टू 2.5 इंटू माइनस 4 ई के पावर माइनस 1 माइनस ई के 0. तो x इक्वल टू 25 इंटू माइनस 4 0.31 माइनस 1. तो x इक्वल टू 6.30 आ जाएगा आंसर. तो आंसर कितना आ जाएगा 6.3. नेक्स्ट है कि a ball is projected from the ground at an angle of the 45 degree with the horizontal surface. It reaches a maximum height of the 120 meter and returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of the 30 degree with the horizontal surface. The maximum height it is after the bounce in the meter is यूथ दिया 45 डिग्री h1 बाई 120 मीटर 30 डिग्री v इज इक्वल टू √2 और h2 दिया हुआ है. h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2j यानी कि 120. तो u स्क्वायर बाई 2j इज इक्वल टू 120. व्हेन हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट तो v इज इक्वल टू u बाई √2. h2 इज इक्वल टू u बाई √2 के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2j यानी u स्क्वायर बाई 15g. फ्रॉम 1 and 2 h2 इज इक्वल टू h1 बाई 4 यानी कि 30 मीटर ऑन द. जिसका आंसर कितना जाएगा 30.00. अगला सवाल है कि पार्टिकल ऑफ द मास 10 के पावर माइनस 3 kg एंड द चार्ज 1 कूलम इज इनिशियली एट द रिफ्ट एट द टाइम t इक्वल टू 0. द पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और t इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t का वेयर E नॉट इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम एंड ओमेगा इक्वल टू 10 के पावर 3 रेडियन पर सेकंड. Consider the effect of only the electrical force on the particle, then the maximum speed in the meter per second attained by the particle in the subsequent time is n is equal to 10 minus 3 kg, q is equal to 1 coulomb, t is equal to 0. E is equal to E naught sin omega t. Force on the particle will be F is equal to Q यानी कि U naught sin omega t. At P max A F बराबर 0 Q naught sin omega t बराबर 0 तो F is equal to Q naught sin omega t. d by dt is equal to Q E naught by M sin omega t यानी 0 से भी dv तो 0 से पाई बाई ओमेगा Q U naught by M sin omega t dt. तो v माइनस 0 Q U naught by M ओमेगा माइनस cos ओमेगा t 0 से पाई बाई ओमेगा. तो v माइनस 0 Q U naught by M ओमेगा माइनस cos पाई माइनस cos 0. तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 2. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ 50 टर्न्स एंड ईच टर्न हैज एन एरिया ऑफ 2 × 4 मीटर स्क्वायर. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इनसाइड द गैल्वेनोमीटर इज 0.02 टेस्ला. The torsional constant of the suspension by 10⁻⁴ Newton meter per radian. When a current flows through the galvanometer, a full-scale deflection occurs if the coil rotates by the 0.2 radian. The resistance of the coil of the galvanometer is 0.50 ohm. This galvanometer is to be converted into an ammeter capable of measuring current in the range 0 to 1 ampere
For the shunt resistance which to be added in parallel to the galvanometer, the value of the shunt resistance in the ohm कितना हो जाएगा? तो n इक्वल टू दिया 50 टर्न्स, a इक्वल टू 2 गुना 10⁻⁴, b इक्वल टू 0.02 टेस्ला, k इक्वल टू 10⁻⁴, qm इक्वल टू 0.2 रेडियन, rg इक्वल टू 50 ओम, I इक्वल टू 0-1 एम्पियर, यानी टॉ इक्वल टू mb यानी फी थीटा, तो m इक्वल टू nia, बी आई एन इक्वल टू फी थीटा, तो 0.02 गुना 1 गुना 50 गुना 2 गुना 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻⁴ गुना 0.2 गुना 10, तो आई जी इक्वल टू आ जाएगा 0.1 एम्पियर. For the galvanometer resistance to be connected to ammeter in the front, आई जी इक्वल टू 0.1, आर जी इक्वल टू 50, तो आई माइनस आई जी फ्रंट पे जा रहा है, तो आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एफ, तो एफ कितना आ जाएगा 5.55, तो इसका आंसर जाएगा 5.55. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टील बायर of the diameter 0.5 mm and the Young model of 2 × 10⁻11 Newton per meter square carry a load of the mass m. The length of the wire with the load is 1 meter. A vernier scale with a 10 division is attached to the end of this wire. Next to the steel bar is a reference wire to which a main scale of the lift 1 mm is attached. The 10 division of the vernier scale correspond to 9 division of the main scale. Initially, the 0 of the vernier scale corresponds with the 0 of the main scale. If the load on the steel bar is increased by the 1.2 kg, the vernier scale division which corresponds with the main scale division is take g equal to 10 meter per second square and pi equal to 3.2. तो d इक्वल टू 0.5 mm, गामा इक्वल टू 2 गुना 10⁻11, एल इक्वल टू 1 मीटर, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा यानी एम जी एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 गामा यानी 1.2 गुना 10 गुना 1 बाई पाई बाई 4 गुना 5 गुना 10⁻⁴ के स्क्वायर गुना 2 गुना 10⁻11. तो यहाँ से आ जाएगा कितना 12 बाई 0.8 गुना 25 गुना 2 गुना 10⁻³ यानी 12 बाई 40 गुना 10⁻³ यानी कि 0.3 mm. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3. For the third division of the vernier scale will coincide with the main scale. The answer is 3. Next question is 1 mole of a monatomic gas undergoes an adiabatic expansion in which its volume becomes 8 times its initial value. If the initial temperature of the gas is 4 Kelvin and the universal gas constant R is equal to 8.0 joule per mole per Kelvin, the decrease in the internal energy in the joulage, so V1 is equal to V, Vf is equal to 8V. For the adiabatic process, gamma is equal to 5/3. For the monatomic process के लिए तो टी वी गामा का पावर -1 इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा का पावर -1, तो 100 V2/3 इज इक्वल टू टी टू 8 V2/3, तो टी टू इज इक्वल टू आ जाएगा 25 केल्विन. डेल्टा इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी यानी 1 इंटू एफ आर बाई 2 गुना यानी 100 - 25 इज इक्वल टू 900 जूल. इसका आंसर कितना जाएगा 900 जूल. नेक्स्ट है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ए पैरेलल बीम ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट विद द पावर ऑफ द 200 वाट इंसिडेंट ऑन द परफेक्टली ऑब्जर्विंग कैथोड ऑफ द बल्क फ्रैक्शन 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The frequency of the light is just above the threshold frequency so that the photoelectrons are emitted with a negligible kinetic energy. Assume that the photoelectrons emission efficiency is 100%. A potential difference of the 500 volt is applied between the cathode and the anode. All emitted electrons are incident normally on the anode and are absorbed. The anode experiences a force of F is equal to 9 × 10⁻⁴ Newton due to the impact of the electron. The value of the n कितना हो जाएगा? Mass of the electron दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻31 kg. 1 electron volt is equal to 1.6 × 10⁻⁹ joule. तो पावर इज इक्वल टू एन एच भी, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फोटॉन्स पर सेकंड, के इज इक्वल टू 0, एच बी इज इक्वल टू 5, तो 200 गुना एन गुना 6.25 गुना 1.6 × 10⁻⁹ जूल. एन इज इक्वल टू 200 बाई 1.6 गुना 10⁻⁹ गुना 6.25, तो इसका आंसर कितना जाएगा 24. एन इज इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई 1.6 गुना 10⁻⁹ गुना 6.25. As the photon is just above the threshold frequency, K max is 0 and they are affected by the potential difference of the 500 volt. K final is equal to Q delta V, तो P square by 2m is equal to Q delta V. P is equal to root over 2m Q delta V. Since the efficiency is 4%, number of the electrons is equal to number of the photons per second. As the photon is completely absorbed, force exerted is equal to nmv. तो 200 by 6.25 गुना 1.0 गुना 2 रूट ओवर 2 गुना 9 गुना 10⁻⁻31 गुना 1.6 गुना 10⁻⁹ गुना 500 यानी 3 गुना 200 गुना 10⁻⁻25 गुना रूट ओवर 600 बाई 6.25 गुना 1.6 गुना 10⁻⁹ इज इक्वल टू 2 गुना 240 बाई 6.25 गुना 1.6 गुना 10⁻⁴ गुना 3 यानी कितना आ जाएगा 24. तो इसका आंसर आएगा 24. नेक्स्ट है कंसिडर ए हाइड्रोजन लाइक आयनाइड एटम विथ एटॉमिक नंबर Z with a single electron. In the emission spectrum of this atom, the photon emitted in the n/2 to n/1 transition had the energy 24.8 electron volt. Then the photon emitted in the n/3 to n/2 transition, the ionization energy of the hydrogen atom is 13.6 electron volt. The value of Z कितना हो जाएगा? तो E27 13.6 गुना Z स्क्वायर 1 - 1/4 यानी 13.6 गुना Z स्क्वायर 3/4. तो E32 13.6 Z स्क्वायर 1/4 - 1/9 यानी 13.6 Z स्क्वायर 5/36
डेल्टा ई 2 से 1 इज इक्वल टू डेल्टा ई 3 से 2 प्लस 24.8, यानी 13.5 गुना जेड स्क्वायर 3/4 इक्वल टू 13.5 गुना जेड स्क्वायर 5/36 प्लस 24.8। तो 13.5 गुना जेड स्क्वायर इक्वल टू 3/4 गुना माइनस 5/36 24.8। तो जेड यहाँ से कितना आ जाएगा +3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +3। अगला सवाल है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मेजर्ड एट ए पॉइंट पी 0, डी जनरेटेड ड्यू टू द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिपेंडेंस ऑफ द ई ऑन द डी इज फाउंड टू बी different for the different charge distribution. List 1 contains a different relation between E and D. List 2 describe the different electric charge distribution along with their location. To match the function in the list 1 with the related charge distribution in the list 2. तो के ई जो होता है वो होता है के ई बाई डी स्क्वायर, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर डायपोल, दूसरा तो डायपोल हो जाएगा। फिर तीसरा ई जो होता है रूट ओवर यानी 2 KP बाई डी क्यू रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ई वन है प्रोपोर्शनल डी क्यू फॉर द डायपोल। For the line charge is equal to 2k lambda by d, तो E हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by d। E is equal to 2k lambda d minus L minus 2k lambda by d plus L, तो 2k lambda d plus L minus d plus L by d स्क्वायर minus L स्क्वायर। अब E is equal to 2k lambda into 12 d स्क्वायर 1 minus L स्क्वायर by d स्क्वायर, तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड टू फिट हो जाएगा E is equal to सिग्मा बाई 2 नॉट, तो E is equal to भी इंडिपेंडेंट ऑफ द R, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी जाएगा इसका आंसर कि पी का जाएगा 5, यानी ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डी इन्फिनाइट प्लस प्लेन चार्ज कॉन्सिडेंट विद एक्स बाई प्लेन विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो इसका जाएगा ये। फिर क्यू का जाएगा 3 कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो इसका जाएगा इन्फिनाइट लाइन चार्ज कॉन्सिडेंट विद द एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फिर आता है इसका आर का 1 और 4, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, तो 1 जाएगा ए पॉइंट चार्ज क्यू एट द ऑरिजिन, और जाएगा 4 कि 2 infinite bars carrying uniform linear charge density parallel to the x-axis. The one along the y बराबर z बराबर has a charge density plus lambda, and the one along the y बराबर 0 z is equal to minus L है charge density minus lambda, तो 2L much less than क्या हो जाएगा d। फिर इसका जाएगा 2, यानी कि a small dipole with the point charge q at 0,0, L and the minus q at 0,0, L takes 2L much less than d, तो इसका क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a planet of the mass m had two natural satellites with the mass m1 and the m2. The radii of the curvature orbit are r1 and r2 respectively. Ignore the gravitational force between the satellites. Define v1, l1, k1 and the t1 to be respectively the orbital speed, angular momentum, kinetic energy and the time period of the revolution of the satellite 1, and the v2, l2, k2 and the t2 be the corresponding quantity of the satellite 2. Given m1 by m2 is equal to 2 and the r1 by r2 1/4. Match the ratio in the lift 1 to the number in the lift 2. m1 by m2 दिया हुआ 2, r1 by r2 1/4, तो g m1 m2 by r1 के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 के स्क्वायर बाई r1, और फिर उसके बाद आता है v1 के स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई r1, और v2 के स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई r2, तो v1 के स्क्वायर बाई v2 के स्क्वायर इक्वल टू r2 बाई r1 इज इक्वल टू 4। तो p अगर v1 बाई v2 हो जाएगा 2, एल हो जाएगा एम वी आर, यानी एल वन बाई एल टू हो जाएगा m1 v1 r1 बाई m2 v2 r2, यानी 2 गुना 1/4 यानी कि 1, और के हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी k1 बाई k2 इक्वल टू m1 v1 के स्क्वायर बाई m2 v2 के स्क्वायर, यानी 2 गुना 2 के स्क्वायर इक्वल टू 8, और t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r बाई v, यानी t1 बाई v2 r1 बाई v1 गुना v2 बाई r2, यानी r1 बाई r2 गुना v2 बाई v1, तो कितना हो जाएगा 1/8। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी कि P के 3, Q के 2, R के 4 और F के क्या जाएगा 1, तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज 4 thermodynamic process as shown schematically in the PV diagram below. Among these 4 processes, one is isobaric, one is isochoric, one is isothermal and one is adiabatic. तो match the process mentioned in the lift 1 with the corresponding statement in the lift 2. इसमें है कि प्रोसेस 1 is the adiabatic process and delta Q is equal to delta U plus W, तो delta Q is equal to 0, W is equal to minus delta U, तो volume of the gas is decreasing यानी W is less than 0, delta U is greater than 0 हो जाएगा, temperature of the gas increases, no heat is exchanged between the gas and the surrounding. Process 2 is an isobaric process, pressure remains constant, W is equal to P delta V यानी 3 P naught, 3 V naught minus V naught is equal to 6 P naught V naught. Process 3 is an isochoric process, volume remains constant, delta Q is equal to delta U plus W is equal to 0, तो डेल्टा Q इंटू डेल्टा Q is equal to डेल्टा U. प्रोसेस 4 इन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, डेल्टा Q is equal to डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U is equal to क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन
इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन कितना चला जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा इसका आंसर। पी का 3, क्यू का 4, आर का 1 और एफ का 2। अगला सवाल है कि इन द लिफ्ट one below, 4 different paths of the particles are given as a function of the time. In each function, alpha and beta are the positive constant of the appropriate dimension and the alpha is not equal to beta. In each case, the force acting on the particle is either zero or the conservative. In the lift 2, 5 physical quantities of the particle are mentioned. P is the linear momentum, L is the angular momentum about the origin, K is the kinetic energy, U is the potential energy, and A is the total energy. Match each path in the lift 1 with those quantities in the lift 2 which are conserved for that path. तो P इज इक्वल आर ऑफ टी अल्फा टी आई का प्लस बीटा टी जे का, भी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी यानी अल्फा आई का प्लस बीटा जे का कॉन्स्टेंट, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी रिमेंस कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर रिमेंस कॉन्स्टेंट, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस प्लस डेल्यू बाई डेल बाई आई कैप 0, यू जो हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू के प्लस यू, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट, क्यू ऑफ आर इक्वल टू आर ए कॉस ओमेगा टी आई का प्लस बी फन ओमेगा टी जे कैप, भी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी यानी माइनस ओमेगा फन ओमेगा टी आई का प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस बी ओमेगा फन ओमेगा टी जे कैप, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बी फन ओमेगा टी जे कैप। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, आर एन एफ ऑफ पैरेलल, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट टी आर प्लस 0 से आर एम ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, तो डेल्टा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, तो यू जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आर ये फंक्शन ऑफ द टाइम हो जाएगा। अब इसका आगे फिर है कि यू डिपेंड्स ऑन द आर हेंस इट विल चेंज विद टाइम, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज फोर्स इज सेंट्रल, तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई का प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, बी ऑफ टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी अल्फा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई का प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, तो मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए ओमेगा एफ पी रिमेन्स कांस्टेंट, ए ऑफ टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी जे कैप, तो माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, तो ए ऑफ टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर इक्वल टू 0, तो mod of r equal to alpha remains constant, force is central in the nature and distance from the fixed point is constant, potential energy remains क्या हो जाएगा constant हो जाएगा, तो kinetic energy also constant, speed is constant, r equal to alpha ti का प्लस बीटा बाई 2 टी स्क्वायर जे कैप, तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी और अल्फा टी आई का प्लस बीटा टी जे कैप, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टी, अल्फा इक्वल टू डी वी बाई डी टी बीटा जे कैप और एफ इज इक्वल टू एम ए कॉन्स्टेंट, डेल्टा इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर माइनस एम 0 for टी बीटा जे कैप अल्फा आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप डी टी, तो यूज इक्वल टू माइनस एम बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 यानी के इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर यानी हाफ एम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू के प्लस यू यानी हाफ एम अल्फा स्क्वायर मीन्स कॉन्स्टेंट, तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, पी का 1 2 3 4 5, क्यू का 2 5, आर का 2 3 4 5 और एफ का जाएगा 5, तो इसका आंसर चला जाएगा ए चला जाएगा। अब देखते हैं इसका केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है फॉर इसमें कि द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स CO EN Na3 के 3:2 3 प्लस EN जो है NH2 CH2 NH2 इज आर, तो CO EN NH3 के 3:2 प्लस 3 कॉम्प्लेक्स जो टाइप MAAB3C हैव द 2 GI, तो AA BC और BB, फिर AA BB और CC। If EN is replaced by 2 finite ligand, complex will be type of the MA3B2C NF3GI, तो हो गया MAA AAB फिर B और C दिया हुआ है, फिर MAA BB और फिर C और A दिया हुआ है, फिर M फिर AB AB और AC दिया हुआ है, तो CO EN Na3 के 3:2 के 3 प्लस have the diffuse configuration, T2 is fixed on the central metal with the FFL, therefore it is diamagnetic in the nature। फिर कॉम्प्लेक्स CO EN Na3 के 3:2 3 प्लस ऑफ द लेसर CFC डेल्टा वैल्यू देन द CO EN Na3 के 4 3 प्लस, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स CO EN Na3 के 3:2 प्लस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ फॉर द DD ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ए, इट है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर बी इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द बाइडेंटिटी प्रेफर्ड बाय द 2 फाइनाइट आयन, और डी इट विल फ्लैट इन एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू द CO EN Na3 के 4 3 प्लस। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्टिंग्विश नाइट्रेट साल्ट ऑफ द Mn2 प्लस एंड द CO2 प्लस टेकन सेपरेटली इज आर,
तो इसमें आ जाएगा Fu2 plus fan and Mn2 plus both give the green color in the flame test and color distinguished. फिर आता है Fu2 plus belong to the group 2 of the cationic radical will give the precipitate of the FuF in the acidic medium, or Fu2 plus and Mn2 plus both from the ppt in the basic medium. फिर Fu2 plus by Fu plus 0.34 भी FRP और Mn2 plus by Mn minus 1.18 भी FRP हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी, ओनली Fu2 plus from the formation of the precipitate by passing H2S in the acidic medium, और डी Fu2 plus by Fu है द हायर रिएक्शन पोटेंशियल देन Mn2 plus by Mn। ठीक है, तो बी और डी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि एनिलीन रिएक्ट्स विद द मिक्सड acid concentrated HNO3 and the concentrated H2SO4 at 288 Kelvin to give the P 51% and the Q 47% and the R 2%. The major product, the following reaction sequences are, तो NH2 में HNO3 H2SO4 करेंगे तो ये बनेगा NO2 आ जाएगा। फिर NH इसमें अगर Fe2 और Py करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर Pr2 CH3 CO2 COOH करेंगे तो ये बन जाएगा। NO2Br में FNH4 करेंगे तो NH2 आ जाएगा। फिर उसमें अगर ETOH करेंगे तो ये बन जाएगा। इसमें अगर NH2 NO2 NaNO3 0.5 करेंगे तो N2 प्लस आ जाएगा। फिर उसमें Br2 H2O एक्सेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और NaNO2 HCl 0.5 एक्सेस करेंगे तो ये आएगा। फिर H3PO3 करेंगे तो है जो ये बन जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, Br आ जाएगा। नेक्स्ट है द प्रीफर प्रोजेक्शन ऑफ द डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा ग्लूकोपारानोज इज आर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वाला है जो बीटा ग्लूकोडिपारानोज का आंसर है। जैसे सी डबल बॉन्ड हो OH OH C2H, ये तो डी ग्लूकोज हो गया, फिर बीटा डी ग्लूकोपारानोज और ये बीटा एल ग्लूकोपारानोज ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला डी। नेक्स्ट है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन F gas 2B gas plus C gas at a constant volume 1900 Kelvin, the total pressure at the beginning T is equal to 0 and the time T and the P naught and the PT respectively. Initially only A is present with the concentration A naught and the T 1/3 is the time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its initial value. The correct option क्या हो जाएगा? Assume that all the gases behave as the ideal gas. तो A है जो 2B plus C रहता है, P naught minus P 2P और P रहता है। P naught plus 2P is equal to PT. K is equal to 1/T ln P naught by P naught minus P 1/T ln P naught by P naught minus PT minus P naught by 2. तो K is equal to 1/T ln 2P naught by 3P naught minus PT minus KT plus ln 2P naught ln 3P naught minus PT, and the T 1/3 is equal to 1/K ln P naught by P naught by 3 यानी 1/K ln 3, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए ln 3P naught minus PT टाइम, और इसका जाएगा फिर उसके बाद ऑप्शन डी रेट कांस्टेंट ए नॉट, ये वाला जाएगा। तो आंसर ए और डी इसका है जो चला जाएगा। अगला सवाल है कि फॉर ए रिएक्शन FP द प्लॉट्स ऑफ द A एंड P विद द टाइम एट T1 एंड T2 आर गिवन बिलो। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है T1 T2, फिर टाइम दिया हुआ है T1 T2। इफ T2 is greater than T1, the correct statement is assume delta H and delta F are independent of the temperature and the ratio of the ln K at T1 to the ln K at T2 is greater than the T2 by T1, hence H, F, G and K are enthalpy, entropy, Gibbs energy and equilibrium constant respectively. तो FP दिया हुआ T2 greater than T1, ln K1 by ln K2 greater than T2 by T1, T1 ln K1 is greater than T2 ln K2, माइनस डेल्टा G1 की डिग्री ग्रेटर देन माइनस डेल्टा G2 की डिग्री, माइनस डेल्टा H1 प्लस T डेल्टा F1 इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा G0 प्लस T2 डेल्टा F, तो T1 डेल्टा F0 इज ग्रेटर देन T2 डेल्टा F0, तो डेल्टा F0 हो जाएगा लेस देन 0 आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए डेल्टा H0 इज लेस देन 0, डेल्टा F0 इज लेस देन 0, और फिर सी भी जाएगा डेल्टा G0 इज लेस देन 0 और डेल्टा F0 इज लेस देन 0। तो ए और सी इसका आंसर चला जाएगा। अगला सवाल है टोटल नंबर ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप अमंग द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो इज। N2O3 अगर देखें तो ये जा रहा है, ये जा रहा है। N2O5 में ये हो रहा है, P4O6 में F जा रहा है, P4O1 में F जा रहा है। तो 5 जाएगा और 6 जाएगा, है ना, 5 और 6 इसका आंसर। H4P2O5 में भी एक है, H5P3O10 में भी एक है, H2F2O3 में भी एक है और H2F2O5 में भी एक है। तो इसका आंसर 5 जाएगा और 6 जाएगा। अगला सवाल है गैलेना an ore is partially oxidized by passing air through its high temperature. After some time the passage of the air is stopped, but heating is continued in a closed furnace such that the contents undergo self-reduction. The weight in the kg of the Pb produced per kg of the O2 consumed is atomic weight in the gram per mole O is equal to 16, F is equal to 32, P is equal to 207। तो Pb F प्लस O2 बनता है Pb प्लस F O2 1032 गुना 207 मोल ऑफ Pb इक्वल टू मोल ऑफ O2। तो 1032 मोल
यानी मास ऑफ पी इक्वल टू 1032 गुना 207 यानी कि 207 बाई 32 यानी 6.47 kg। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.47 kg। नेक्स्ट है कि टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द MnCl2 dissolved in aqueous solution it was completely converted to the KMnO4 using the reaction MnCl2 plus K2F2O8 plus H2O देता है KMnO4 plus H2SO4 plus HCl equation not balanced। Few drops of the concentrated HCl were added to the solution and gently warmed. Further, oxalic acid with 225 gram by added in the proportion till the color of the permanent ion disappeared. The quantity of the MnCl2 in the Mg present in the initial solution is एटॉमिक वेट इन द ग्राम पर मोल Mn का 55 और Cl का दिया 35.5। तो MnCl2 A मोल प्लस K2F2O8 प्लस H2O KMnO4 A मोल प्लस H2SO4 प्लस HCl दिया हुआ है। तो ऑक्जिलेट प्लस MnO4 H प्लस करेंगे तो CO2 बन रहा है। M इक्वलेंट ऑफ द C2O4 माइनस M इक्वलेंट ऑफ द MnO4 माइनस दे रहा है 2 गुना 0.225 बाई 90 इज इक्वल टू A गुना 5 A इज इक्वल टू 1 गुना 55 प्लस 71 यानी 126 mg। तो इसका आंसर कितना जाएगा 126। नेक्स्ट है कि फॉर दी गिवन कंपाउंड X द टोटल नंबर ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव F2 आइसोमर इज। तो OH और OH दिया हुआ। दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड। और दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। तो इसमें कितना जाएगा 7 चला जाएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी formed from the 10 moles of the acetophenone is atomic weight in the gram per mole H equal to 1, C equal to 12, N equal to 14, Y equal to 16, Br equal to 80। The percent yield corresponding to the product in each step is given in the parenthesis। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें अगर करेंगे NOBrH2 होते हैं 50% NH3 डेल्टा तो B बनाएगा, Br2 की वजह तो C बनाएगा, Br3 इक्वलेंट टू C तो D बनाएगा 100%। तो 10 मोल NOBrH2 तो ये बनाएगा 50%। NH3 हेट तो NH2O बनाएगा 50%, Br2 बनाएगा 50% और Br3 3 इक्वलेंट SO3 बनाएगा 100%। यानी Br NH3 तो ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ द कॉपर गेट्स ट्रांसमिटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इनटू गैस बाय पैराफिड टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द कॉपर एट 1250 Kelvin। However, the N2 gas contains 1 mole% of the water vapor for the impurity. The water vapor oxidized copper as per the reaction given below 2Fu plus H2O देता है Fu2O plus H2। pH2 is the minimum partial pressure of the H2 in the bar needed to prevent the oxidation of the at the bar of 50 Kelvin। The value of the Ln pH2 कितना हो जाएगा। Given total pressure is equal to 1 bar R in vapor gas constant है 8 joule per Kelvin per mole। Ln 10 2.3 Fuf Fu2F और mutually immiscible। At bar of 50 Kelvin 2 Fu plus half O2 देता है Fu2O डेल्टा G नॉट माइनस 78,000 जूल पर मोल। तो H2 प्लस हाफ O2 देता है H2O प्लस डेल्टा G नॉट माइनस 1,78,000 जूल पर मोल गिव्स एनर्जी से। तो Fu प्लस हाफ O2 देता है 1 Fu2O डेल्टा G नॉट माइनस 77 किलो जूल। H2 प्लस हाफ O2 H2O देता है डेल्टा G नॉट माइनस 177 गुना -1 हैंस 2 Fu प्लस H2O देता है Fu2O प्लस H2 डेल्टा G नॉट प्लस 100 किलो जूल। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT/LN यानी 0 इक्वल टू प्लस 100 प्लस 8/100 गुना 1250 Ln pH2 बाई pH2O यानी -100 गुना 1000 बाई 8 1250 Ln pH2 बाई 1 बाई 100 गुना 1 तो Ln pH2 कितना हो जाएगा -14.6। तो -14.6 इसका जो आंसर चला आएगा। अगला सवाल है कंसीडर दी फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस B गैस देता है AB गैस। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बाई 2R2 इन द जूल पर मोल। If the pre-exponential factor for the forward reaction is 4 times that of the reverse reaction, the absolute value of the delta G naught in the joule per mole for the reaction at 300 Kelvin is given Ln2 equal to 0.7, RT equal to 25 joule per mole per Kelvin at 300 Kelvin and G is the Gibbs energy। तो A gas plus B gas is equal to AB gas, EAB minus EF equal to 2RT, delta H equal to minus 2RT, Ln AF and AF by AB equal to कितना आ जाएगा 4। K equivalent equal to KF by KB यानी AF E minus E delta F by RT, AB E minus EAB by delta यानी 4 into E स्क्वायर यानी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT/LN के यानी -2500 गुना Ln 4 गुना E स्क्वायर यानी -8500 जूल पर मोल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा 8500 जूल पर मोल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8500 जूल। कंसर्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा 8500 जूल आ जाएगा। फिर आता है कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल FAN एक्वस 2m B naught 2m equals 1 B. The value of the delta NH for the field reaction is twice that of the delta G naught at 300 Kelvin. If the EMF of the field is 0, delta F naught in the joule per Kelvin per mole of the field reaction per mole beta is 300 Kelvin is 0.
Given Ln2 is equal to 0.7, universal gas content 8.3 joule per Kelvin per mole, H and Fg and enthalpy entropy and the Gibbs energy respectively. तो 11.-11.62 इसका आंसर है क्यों? क्योंकि A प्लस एको ऑफ 2m B2n एको ऑफ 1m B दिया हुआ है, तो डेल्टा H नॉट इक्वल टू 2 डेल्टा G नॉट यानी ई फिल इक्वल टू आ जाएगा 0. फिल रिएक्शन A प्लस 1 और Ne इंटू 2 B प्लस 2n देता है B, तो A प्लस B2n 2ABn प्लस B देता है. डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln A प्लस n के स्क्वायर बाई B का प्लस 2n. डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln A प्लस n के स्क्वायर बाई B प्लस 2n माइनस RT ln 2 के स्क्वायर बाई 1 यानी कि माइनस RT ln 4. तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस 2 डेल्टा F नॉट. डेल्टा G नॉट इक्वल टू 2 डेल्टा G नॉट माइनस 2 डेल्टा F नॉट. तो डेल्टा F नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा G नॉट बाई T इक्वल टू माइनस RT ln 4 बाई T यानी कि माइनस 8.3 गुना 2 गुना 0.1 यानी माइनस 11.62 जूल पर केल्विन मोल. Now match each set of the hybrid orbitals of the lift 1 with the complex given in the lift 2. तो F6 माइनस इसका करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा. फिर Ti2O3 Cl3 इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आ जाएगा. फिर आता है CrNe3 के 6 प्लस हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आएगा. FeCl42 माइनस का आ जाएगा sp3. NiCO4 का सूत्र है बैक पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. NiCN42 माइनस 3d8 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द FFL, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2. नेक्स्ट है कि द डिजायर्ड प्रोडक्ट X can be prepared by reacting the major product of the reaction in the lift 1 with the one or more appropriate reagent in the lift 2. Given order of the majority aptitude aryl is greater than alkyl is greater than hydrogen, तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें देखें अगर तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका जा रहा है डी, ये वाला. P का 1 और 5 यानी इसका 1 और 5 ये वाला. तो उसके बाद Q का 2 और 3 इसका 2 और 3 फेलिंग सॉल्यूशन. फिर R का 1 और 5 1 और 5 और फिर F का 2 और 3 F का फिर 2 और 3. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरफ है कि लिफ्ट 1 कंटेन्स द reaction and lift 2 contains the major product. तो match each reaction in lift 1 with one or more product in the lift 2 and choose the correct option. तो इसका जाएगा ऑप्शन बी, यानी P का जाएगा 1 और 4 1 और 4. फिर Q का जाएगा 2, R का जाएगा 4 और F का जाएगा 3. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी. इसका सॉल्यूशन है कि P में जैसे O माइनस 1 है प्लस Br E2 तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा. OMe प्लस HBr तो ये बन जाएगा, फिर ये तो ये बन जाएगा और ये करेंगे तो फिर ये बन जाएगा. नेक्स्ट फिर आता है कि डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद द लेटर विथ वाटर आर गिवन एट लिफ्ट 1. द इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द H प्लस आर गिवन एट लिफ्ट 2. डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द बिग एसिड एंड द बिग बेस इज मच लेस देन 1. डिग्री ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट इज मच लेस देन 1. H प्लस रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन. C3 फ्लोरज प्लस NOH C3 फ्लोर प्लस H2 देता है. pH इक्वल टू pK H प्लस विल नॉट चेंज इन द डाइल्यूशन. मैच P1 का हो जाएगा 1. फिर C3 फ्लोरज प्लस NOH 0.1 20 ml 0.1 20 ml C3 फ्लोर प्लस H2 0.05 और H माइनस का हो जाएगा रूट ओवर KH बाई C यानी रूट ओवर KW बाई K इंटू C. फिर इसका रूट 2 NH4OH प्लस HCl NH4Cl 0.1 20 0.1 20 0.05 H प्लस रूट ओवर KH बाई C, तो इसका 1/√2 आ जाएगा. बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूटेड एंड नॉट चेंज, तो H प्लस को क्या आ जाएगा? कांस्टेंट.